नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी. So welcome to our labor law challenge day 9. So as you know, we are doing labor law challenge related with labor law questions, industrial relation, accountings, computer and other related topics. ठीक है दोस्तों, you will get here the complete content for labor law, industrial relation, all those related topics for EPFO, Assistant Provident Fund Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer exam. ठीक है दोस्तों, hope this initiative is helping you in preparation and it is helping you to prepare and practice these questions effectively and ultimately it will help in your examination. ठीक है दोस्तों, so please like and subscribe this channel and also join our Telegram channel from the link given in the description box, where you will get all the content like PDF files, mind maps, more MCQs and complete content for labor law, industrial relation and other things on that channel. ठीक है दोस्तों, so please उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए. You will be getting all update related with labor laws related topics. ठीक है दोस्तों, चलिए we will start our labor law challenge day 9. Today is the 9th day. ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. If the employee is terminated or removed for the employment by the employer, the wage of that employee should be paid within days from the day on which he was removed or terminated. ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है कि किसी भी एम्प्लॉयर ने अगर किसी एम्प्लॉय को उसको टर्मिनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो उसके जो भी वेजेस है, जो भी पेंडिंग सैलरी है या पैसा है, वो कितने दिन के अंदर पे करना होता है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ठीक है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे ऑप्शन दे दीजिए 7 days, 15 days, 30 days एंड 2 days. ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, 2 days. As per this act, within 2 days, any employer has to pay the dues or remaining wages of any employee who is removed or terminated from the employment. ठीक है दोस्तों, sometimes what happens, employers they will exploit, they will not give you the final dues, they will not give the pending money. So these provisions will help to get employee whatever dues remaining are pending. ठीक है दोस्तों, important question है. तो इसका आंसर क्या है, 2 दिन. विद इन 2 days दे हैव टू गिव. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. एनी फाइन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉई हु इज अंडर द एज ऑफ ईयर्स. आपको यहाँ पे बताना है कि कितने ईयर्स से कम होने पे कोई भी फाइन नहीं इम्पोज किया जा सकता है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. तो फाइन should not be imposed on any employee who is under the age of, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 21 years है, 18 years, 15 years and 14 years दोस्तों. ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है? इसका आंसर है दोस्तों कि जो भी 18 years से कम है, 18 years से कोई भी जो कम है उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जा सकता एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 18 years. बी इज द ऑप्शन. फाइन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉई हु इज अंडर द एज ऑफ 18 years. ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है. चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन, द ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसके जो स्कीम है हैज बीन एक्सटेंडेड टू फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 or more persons. तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, establishments engaged in insurance business, non-banking financial companies या all of the above. Simple question they are asking, ESI scheme is applicable out of these options which are employing 10 or more persons. किस चीज में applicable है ये एम्प्लॉय एक्ट, उसका जो applicability है उस पे क्वेश्चन है. ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो ESI एक्ट है उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, शॉप्स अगर 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉय करता है, तो दे आर एलिजिबल फॉर ESI स्कीम एंड ESI स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज इंस्टीट्यूशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, एक्चुअली डी.
D will be the answer. Shops, hotels, restaurants also, establishment in insurance business, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन यहां पर देखिए, एम्प्लॉइज अर्निंग अप टू अ डे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। It is talking with in context of ESI Act, Employee State Insurance Act. Employees earning up to how many rupees per day who are exempted from the payment of their share of contribution. Actually, what happened? ESI there are two components. One per employers they pay, and one component employee has to pay. Like right now existing is 4%. So out of 4%, 3.25% will be paid by employer, 0.75% will be paid by employee. ठीक है दोस्तों, तो टोटल 4% ऑफ बेसिक प्लस डीए और जो बेसिक वेज है उसका ईएसआई एक्ट के अंदर कटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसे एम्प्लॉई कितने रुपए से कम जो कमाते हैं उनको अपना जो 0.75% है वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना होता, दे आर एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 250 रुपीज, 176, 150, 184। तो इसका दोस्तों आंसर है यहाँ पे बी। एज पर एक्ट 176 रुपीज जो कमाते हैं पर डे लेस देन आर अप टू, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एज पर द ईएसआई एक्ट। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, बट स्टिल यू शुड नो ऑल दोस क्वेश्चन। चलिए ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, as per the latest amendment under the ESI Act 1948, medical treatment is now available to persons under voluntary retirement scheme also. As per the latest amendment ESI Act 1948 में medical treatment is now available to persons under voluntary retirement scheme, VRS लेते हैं जो voluntary, उनका एज 60 नहीं हुआ है बट वो रिटायरमेंट लेते हैं बिफोर 60 अपने से, वॉलेंट्री खुद से इनिशिएट करके, बट समटाइम्स कंपनीज दे हैव टू गिव दैट ऑफर। ठीक है, तो स्व रिटायरमेंट जो इसको बोलते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ईएसआई के अंदर उनको ट्रीटमेंट मिलता है नहीं मिलता। तो इसका पूछ रहा है ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू और एक्ट इज साइलेंट। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है कि ट्रू। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो किया गया है उसके अंदर क्या है, जो वीआरएस लेते हैं they are also means eligible for medical treatment under this ESI Act 1948। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यस दोस्तों, दिस इज कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। एज यू नो we are also trying to include some questions related with computer also in this session, in this challenge. So one by one we are seeing this computer section also। ठीक है, the sixth question is, what is the extension of Microsoft Word document? Very simple question, but still who are from non-tech background they need to practice, and also it's like refreshment for you also। तो ऑप्शन देख लीजिए, TXT, doc, PPT, XLS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sometimes you get confused। तो Microsoft Word document is asking, तो Word document का एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे? इसका आंसर सही होगा डॉक फाइल। ओके, डॉक इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। एंड्रॉइड इज, ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक इंटरफेस है, अ सॉफ्टवेयर है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल दीज। बताइए दोस्तों, इसका तो आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज, चलिए मैं बता देता हूं एंड्रॉइड क्या है, आप सभी को पता भी होगा जहां तक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है टू रन ऑल दो सॉफ्टवेयर्स, एंड इट प्रोवाइड्स इंटरफेस विद विन। ठीक है, इंटरफेस विद विन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों, एथ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? सी दोस्तों, हियर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर ऑल्सो नाउ इंक्लूडिंग अकाउंटिंग क्वेश्चंस स्लोली, 1 or 2, 3 questions we will include in our challenge, and we are also increasing number of questions. Earlier it was 5, 6 or 4, 5 questions.
नाउ आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड मिनिमम 10 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सो प्लीज देखते रहिए, इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन जो है दिस इज रिलेटेड विद द अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग विच इज यू मेंशन्ड इन आवर सिलेबस बाय यूपीएससी। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, इट इज अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट ऑन एंट्री, इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटिटी, it is a statement containing balances of debtor and creditor of an entity, it is a statement containing the various ledger balances of an entity on a particular date। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ट्रायल बैलेंस शीट क्या होती है, जो उसका पूरा लेखा जोखा रखती है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट। इफ वी टॉक अबाउट इट अकाउंट्स ऑल द क्रेडिटर एंड डेबिटर्स डिटेल बेसिकली, बट इन अकाउंटिंग टर्म्स लिटिल बिट शुड बी वेरी प्रिसाइज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डी। इट इज a statement containing the various ledger balances of an entity on a particular date। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If you are not talking about date, then it is not having any relevance। Like 31st March, as on we must have seen balance sheet, they mention as on 31st March 2022। This is the balance sheet of company। So they mention what is the like basically there are two parts of balance sheet, ठीक है दोस्तों, क्रेडिट एंड डेबिट, liability and assets। basically they mention what liability and assets। so as on which date, ठीक है। तो ये इसमें क्या बहुत सारे लेजर बैलेंसेज होते हैं। लेजर क्या होता है कि रिकॉर्डिंग फाइल होती है वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस आर गेटिंग रिकॉर्डेड। चलिए इसको डिटेल में हम देखेंगे अकाउंटिंग सेशन में। वी विल आल्सो ट्राई टू कवर आवर अकाउंटिंग सेक्शन। तो इसका आंसर क्या पे है बट यहाँ पे देख लीजिए डी होगा। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन आर करंट लायबिलिटी पेएबल। जैसे मैंने आपको बताया एनी बैलेंस शीट विल हैव टू पार्ट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देन as part of assets and liability there will be some current assets, there will be some long term assets, and here also some current liabilities, some long term liabilities will be there। current liabilities will be short term, you have to pay। then simple question it is asking, so current liability मतलब आपको किसी चीज को जो आपके पास उधार है आपको देना है किसी को, ठीक है। एसेट मतलब आपका खुद का धन है, लायबिलिटी मतलब आपको वो आप पे ड्यू है। सिंपल टर्म में बता रहा हूँ आपको। चलिए तो करंट लायबिलिटीज पेएबल क्या होते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन क्या, विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, बट विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, सब्जेक्ट टू द कंटिजेंसी। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या पे है, विद इन 1 ईयर। कोई भी करंट लायबिलिटी है आपको विद इन 1 ईयर ये पेएबल होती है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी जो अकाउंटिंग के टर्म्स में देखिए बात करेंगे, दैट विल बी टॉक इन सम फाइनेंशियल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वित्तीय वर्ष में हम बात करते हैं जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है सबसे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ईयर जो है वो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल सपोज 2022 एंड इट विल एंड टू 31 मार्च 2023। दिस विल कॉल्ड एज अ वन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बेसिक है। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कोई भी बैलेंस शीट कहीं भी लिखा होता है तो वो मेंशन करता है कि एज ऑन 31 मार्च दिस डेट एंड दिस इज द फाइनेंशियल, दिस डेटा इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आर एनी अदर ईयर, बट दे विल मेंशन ईयर डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें वित्तीय वर्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या था, करंट लायबिलिटी, तो विद इन 1 ईयर इट इज पेएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म है, इंस्टीट्यूशंस है, तो डेफिनेटली यू शुड नो, ठीक है। IFRS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चंस, ठीक है। IFRS ये आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में यूपीएससी के द्वारा जो कराए गए थे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बी क्या है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो IFRS ये फैक्चुअल है, ये बहुत ही, इसका आंसर क्या है दोस्तों, ए है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है दोस्तों। चलिए
ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज डे 9 लेवल ऑफ चैलेंज एंड अकाउंटिंग्स एंड कंप्यूटर आल्सो वी हैव इंक्लूडेड. सो कैसा रहा दोस्तों? होप यू आर एंजॉइंग दिस इनिशिएटिव, यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share with your friends and with peers who can get benefited from this channel. ठीक है दोस्तों, चलिए. So please join our Telegram channel also. The link is given in the description box where you will get all information related with the examination of EPFO Assistant Computer Commissioner. ठीक है दोस्तों, चलिए. Thank you for watching this session. We will see in next session with a new lecture. ठीक है दोस्तों, thank you. Good night. Keep studying. Keep working hard. Definitely you will get success. Thank you. Good night.